welcome to Shripriti Education online classes. So today we are going to see eraser tool in Photoshop CC 2019. So here we are going to see how to use the eraser tool. For selecting the eraser tool, you need to press E from the keyboard, and here you can see eraser tool is selected. When you right click from your mouse, then you can see here are three types of eraser tools are here. First one is a eraser tool, second one is a background eraser tool, third one is a magic eraser tool. So in this tutorial we are going to cover all these three eraser tools. So first of all we are going to see the eraser tool, but before from that the shortcut key to switch between these three tools is Shift plus E. You can press Shift plus E from your keyboard, and then what you can see here that all these three tools one by one come just below to the menu bar. See, I have pressed Shift plus E from the keyboard, and you can see first is eraser tool, second one is background eraser tool, third one is a magic eraser tool. Here you can see just below to the menu bar, and all the properties that are related to the eraser tool just comes with it. So first of all we are going to work on eraser tool. So I am selecting the eraser tool. Eraser tool is used to erase the background, or you can erase any object do you want to erase from your canvas, or for this, if you want to erase the background, then what you need, you can increase the size of your eraser and then erase it. Then decrease the size if you want to erase so minutely around from your flower. So here I am going to decrease the size. I think it is enough. Then zoom the image, press Ctrl plus, and then you can delete it easily. This is also, eraser tool is also used to make the transparent images. इरेज करने से पहले हम एक काम करना चाहिए कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको अनलॉक कर देते हैं. Hello everyone, welcome to Shripriti Education online classes. So today we are going to see the eraser tool in Photoshop CC 2019. So here we are going to cover all the three eraser tools in this session. For selecting the eraser tool, you need to press E from the keyboard, and then you can see eraser tool is selected, and all the properties that are related to the eraser tool is just below to the menu bar. Or another way, you can right click from your keyboard
Another way is to right click from your mouse, and then what you see here, you can see three tools are here. First one is a eraser tool, second one is background eraser tool, third one is a magic eraser tool. So first of all, we will work on the eraser tool, but for selecting from these three tools, you need to press Shift plus E from the keyboard, or you can switch between these three tools and select any one tool from this list. And it is shown in just below to your menu bar, so you can easily identify the properties of related tool. So first of all, we are going to work on eraser tool. Before moving ahead, you just need to unlock your layer and then use your eraser tool. This tool is mainly used to make the PNG images, transparent images, or to remove the background from your image. You can also increase or decrease the size of your brush. Now I am decrease the size of the brush for minutely deleting the background around the object.
मैंने ब्रश का साइज इंक्रीज कर लिया कि यहाँ पे जो भी हमारा थोड़ा बहुत रह गया हम उसको डिलीट कर लें। सो कंट्रोल माइनस कर दो साइज को डिक्रीज करने के लिए। अब यहाँ पे जो हमारा रह गया है थोड़ा सा पार्ट, ये सब डिलीट कर देते हैं। अब ये हमारा पूरी की पूरी एक पीएनजी इमेज बन गई है, एक ट्रांसपेरेंट इमेज बन गई है। अब यहाँ से और माइन्यूटली कर सकते हैं। अब ये तो एक पहला तरीका हो गया, सेव इट। अब आप इसको सेव कर सकते हैं .png में, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स एक्सटेंशन में। तो क्या हो जाएगा, एक ट्रांसपेरेंट इमेज बन जाएगी। लेकिन अब हमने इसमें देखा कि हमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज़्यादा टाइम लगा, और कहीं कहीं से क्या हुआ कि पार्ट से ढंग से डिलीट भी नहीं हो पाया। तो अब हम क्या करेंगे कि हम क्विक सिलेक्शन यूज़ कर सकते हैं। मैं इसी इमेज को दोबारा ओपन करती हूँ। क्विक सिलेक्शन टूल जिसकी शॉर्टकट की W है, उससे इस फ्लावर को सिलेक्ट कर लिया। पहले फ्लावर का सिलेक्शन कर लिया कि हमें ये फ्लावर चाहिए, और यहाँ से इसे डिक्रीज कर दिया अगर हमें थोड़ा सा बाहर निकल गया है। अगर सिलेक्शन, देन अगेन, तो इससे क्या किया हमने, सिलेक्शन कर लिया। अब सिलेक्शन कर लिया, अब आप क्या करेंगे, सिलेक्ट में जाके इन्वर्स कर देंगे और ई दबा के अपना इरेजर टूल सिलेक्ट कर लेंगे। देन यू कैन डिलीट। अब जब आप डिलीट करेंगे, यहाँ से हम अनलॉक कर देते हैं, नहीं तो क्या होगा कि पीएनजी ट्रांसपेरेंट वाला नहीं आएगा, बैकग्राउंड कलर ले लेगा, जो बैकग्राउंड में होता है वो कलर आ जाएगा। अब आपके फ्लावर को कुछ भी नहीं होगा ना, तो पहले क्या हो जाता है, थोड़ा सा डिलीट हो जाता है। अब हमने सिलेक्शन के थ्रू क्या किया कि पहले फ्लावर सिलेक्ट कर लिया, फिर सिलेक्ट इनवर्स के थ्रू जाके हमें उसका बैकग्राउंड डिलीट कर दिया सारा का सारा, और हमारा फ्लावर एज इट इज रहा, उसमें कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, उसको कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। अब जो थोड़ा सा रह गया, डीसेलेक्ट कर देते हैं पहले, कंट्रोल डी। अब यहाँ से थोड़ा सा रह गया है, अब क्या करेंगे, हम जूम करके कंट्रोल प्लस करके यहाँ पे ब्रश के साइज को डिक्रीज करके हम ये थोड़ा थोड़ा पार्ट हटा देंगे जूम करके।
सी हमारा बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट इमेज बन जाएगी। अब हम मूव टूल के थ्रू ये देखो, तो क्या हो गया, इरेजर टूल के थ्रू हमने बैकग्राउंड इरेज कर दिया। फिर हमने इसका यूज क्विक सिलेक्शन टूल करके देखा अनदर वे, क्योंकि वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो हमने पहले सिलेक्ट कर लिया अपने ऑब्जेक्ट को, फिर बैकग्राउंड में सिलेक्टेड में जाके सिलेक्ट इनवर्स कर दिया। तो क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट जो है मेन ऑब्जेक्ट वो एज इट इज रहेगा, उसका बैकग्राउंड का पीछे का सारा डिलीट हो जाएगा बैकग्राउंड। आफ्टर दैट तो सेकंड इज बैकग्राउंड इरेजर टूल। तो सेकंड बैकग्राउंड इरेजर टूल में हम क्या करते हैं, so now we are going to see background eraser tool. For selecting background eraser tool, you can right click from your mouse and then select background eraser tool. Background eraser tool क्या करता है, अपने पिकर में वो कलर पिक कर लेता है जो आपको डिलीट करना है। फिर आप उस माउस को डायरेक्टली वहां पे ले जाके आप उसको डिलीट कर दें, आप उस माउस को छोड़ेंगे नहीं। अब जैसे आपने माउस को छोड़ दिया तो वो क्या होगा, वो जो ड्रॉपर में कलर भरा होगा वो हट जाता है और वो आपकी दूसरी चीजों को डिलीट करने लगता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले तो हम कलर चूज कर लें। तो कलर कैसे चूज करते हैं हम, ऑल्ट करके। तो हमने देखा कि मुझे ये वाला कलर डिलीट करना है, तो मैंने ये अपने पिकर में डाल लिया। अब मैं क्या करूंगी, कर्सर को छोड़ूंगी नहीं, डायरेक्ट जैसे ही इस पे प्रेस करूंगी और पूरा डिलीट करती जाऊंगी। तो क्या होगा, अब ये देखो ये ना बाकी चीजें डिलीट नहीं कर रहा है। फिर मैंने छोड़ दिया, अब ये क्या होगा, रेड वाले पे भी आ जाएगा। तो कलर जो ड्रॉपर में था वो खत्म हो गया। अब मैंने दोबारा पिक किया, ऑल्ट दबा के मैंने दोबारा कलर ले लिया। अब मैंने यहाँ का डिलीट कर दिया। सी, तो क्या उसका इफेक्ट कहीं और नहीं पड़ा। तो जितना भी ब्लू कलर है जो कैच कर रहा है ब्लू कलर, वो डिलीट हो जाएगा। ना तो रेड पे कोई असर आ रहा है ना कुछ। एक बार मैंने देखो माउस यहाँ पे चला रही हूँ मैं, तो ऊपर ये देखो प्लस का साइन जो है सिर्फ वही वाला डिलीट हो रहा है जो ब्लू कलर से मैच करता हुआ है। ना तो रेड पे ले गई, कुछ हुआ नहीं हुआ, रेड पे कुछ भी नहीं हुआ। अब मैंने छोड़ दिया तो क्या होगा, अब रेड डिलीट होने लगेगा, ये देखो। तो अब मैं रेड वाला डिलीट करना चाहती हूँ, तो मैं ऑल्ट दबा के ले लिया, मैंने कलर पिक कर लिया। तो अब क्या होगा, ब्लू डिलीट नहीं होगा, देखो। जो रेडिश मिलता जुलता होगा वो डिलीट हो जाएगा उसका आसपास का रेंज, पर ब्लू डिलीट नहीं होगा, ये देखो। रेडिश डिलीट हो गया, अब ऑरेंज डिलीट नहीं हो रहा है क्योंकि येलो भी डिलीट नहीं हो रहा है, पर रेड कलर सारा डिलीट हो रहा है। यहाँ पे ले आई तो ब्लू भी डिलीट नहीं हो रहा है, ये देखो। जो रेड कलर से मैच होता होगा वो डिलीट हो जाएगा उसके आसपास की रेंज, लेकिन ना तो ऑरेंज पे कोई असर पड़ रहा है और बाकी देखो सब पे डिलीट हो रहा है। जो रेड कलर की लीव्स हैं वो सब डिलीट हो रही है, ये देखो। छोटा छोटा पिक्सल सब कैच कर रहा है। लेकिन ऑरेंज कलर पे कोई असर नहीं आ रहा है, ना ही येलो कलर पे कोई असर आ रहा है। जो रेड रेड है वही लीव्स हट रही है, ना ही ब्लू पे, ये देखो ब्लू पे भी कोई असर नहीं आ रहा है। सी, अब मैंने कहा कि मैं ये पानी वाला जो कलर है ब्लू, इसको ले लेती हूँ, ऑल दबा के एंड देन डिलीट इट। सी, यही कलर डिलीट हो रहा है, बाकी कुछ नहीं। देखो इस कलर से मैच करता हुआ उसी के पिक्सेल्स डिलीट हो रहे हैं, उस कलर के, ये देखो। बाकी कुछ असर नहीं पड़ रहा है, ठीक है। इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, हमने लासो टूल लिया, लासो टूल से हमने बना लिया एक सिलेक्शन कि भाई इस पहाड़ी को हमें डिलीट करना है। एक सिलेक्शन बना लिया कि इस पहाड़ी
डिलीट करना है। देन बैकग्राउंड इरेजर टूल ले लो, एंड देन डिलीटेड। तो क्या होगा, बाहर की चीजें डिलीट नहीं होगी, सिर्फ वही डिलीट होगा। ये ब्लू कलर है हमारे पास तो वही ले रहा है, डार्क वाले कलर को ले नहीं रहा है। और हमने जब माउस छोड़ दिया तो सब डिलीट करने लगा। पहले तो कलर पिकर, बैकग्राउंड का क्या होता है कि कलर जो आपके ड्रॉपर में है वही डिलीट करेगा। आपने कलर चूज कर लिया कि आपको क्या डिलीट करना है, और जैसे आपने माउस छोड़ा तो वो अदर चीजें भी डिलीट करने लगता है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ से पूरा डिलीट हो गया। कंट्रोल डी, डी सेलेक्ट। तो मेन क्या हुआ कि बस आप क्या कर सकते हैं, आप पहले कलर चूज कर लीजिए, कलर पिक में ले लीजिए, पिकर में अपने जो आपको डिलीट करना है, तो उस कलर से मैच करते हुए सारे पिक्सल्स को डिलीट कर देगा, पर आपके दूसरे उस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरा काम क्या कर सकते हैं आप कि आप अपने लासो टूल, क्विक सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट कर लीजिए जो ऑब्जेक्ट को आपको डिलीट करना है वहां से, आप वहां से सिलेक्ट कर लीजिए जो आपको ट्रांसपेरेंट बनाना है। और हो सकता है इसकी जगह पे हम कुछ और लगा दें, तो ये क्या हो गया, इतना इतना जगह हमारा क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया। अब ये हम किसी और में भी फिक्स कर सकते हैं ये चीज, ये मैं अभी बताऊंगी। तो फिर एक तो ये हो गया, और जैसे ही आपको अपने माउस को छोड़ना नहीं है कलर पिक करने के बाद, आपका वही कलर डिलीट हो जाएगा, अदरवाइज वो क्या करेगा, दूसरे कलर के पिक्सल्स को भी कैच करने लगता है। अब हम देखते हैं हमारा थर्ड टूल। थर्ड टूल क्या होता है, मैजिक इरेजर टूल। ये क्या है, एक तरीके का मैजिक इरेजर टूल है। हमने सिर्फ पिक्सल्स कैच कर लेता है वो, और आपका सारा का सारा बैकग्राउंड डिलीट कर देता है। तो इसके लिए मैं ले लेती हूँ एक इमेज यहाँ से, यहाँ से मुझे बैकग्राउंड रिमूव करना है और इस इमेज को मुझे ट्रांसपेरेंट बनाना है बहुत क्विकली। अभी तो मैंने सबसे पहले इरेजर टूल किया, इरेजर टूल से बना के देखा, फिर हमने सिलेक्शन किया, तो बहुत टाइम लग रहा था। अब क्या करा, हमने मैजिक इरेजर टूल ले लिया, और मैजिक इरेजर टूल को बस क्लिक किया और हमारा डिलीट होता गया, ये देखो, और फ्लावर पे कोई असर नहीं पड़ा। तो इससे क्या होता है, बहुत ही ज्यादा क्विकली हो जाता है, और हाल के हाल आपकी पीएनजी इमेज बन जाती है। ये देखो, सब जगह से उसने उस पिक्सल्स को, उस कलर को तुरंत कैच किया और डिलीट कर दिया। हाल जहां हमने इतना सारे इरेजर के थ्रू इतनी देर लगाई, वहां मैजिक इरेजर टूल्स ने क्या कर दिया, मैजिक कर दिया। मैजिक इरेजर टूल ने मैजिक कर दिया और तुरंत के तुरंत सब डिलीट कर दिया। तो ये देखो, तो हुआ नहीं मैजिक। इसे क्या किया, उससे सारा कलर रिलेटेड जो मैच करता हुआ उसके पिक्सल को कैच किया और उस कलर को सबको डिलीट कर दिया। उसमें व्हाइट कलर नहीं था तो व्हाइट कलर नहीं आया, इसलिए व्हाइट कलर डिलीट नहीं हुआ। यहाँ पे क्या डिफरेंस था, ग्रीन कलर भी नहीं आया, तो वो जो मैच करता है उसका बैकग्राउंड तो सारा डिलीट कर दिया। ऐसे ही हम इसमें कर सकते हैं। ये देखो, इससे मैच करता हुआ इसने यहाँ पे नहीं डाला क्योंकि ये कलर अलग है, रेड कलर अलग है, तो हम जहां जहां टच करेंगे वहां वहां ये इरेज करता जाएगा। ये देखो उसके पिक्सल्स को, पर इसका इफेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट्स पे नहीं आता है। जब आप क्लिक करेंगे वहां तब ये डिलीट होगा। ये देखो, ये बहुत छोटे छोटे पिक्सल्स हैं येलो वाले लीव्स के, तो क्या हो रहा है, वो कैच कर नहीं पा रहा है, तो वो धीरे धीरे डिलीट हो रहा है। जहां बड़ा बड़ा है ये वाला, देखो ये हाल डिलीट हो जाएगा। ये देखो, ये हाल हो गया। यहाँ पे हर कलर्स अलग अलग है, ये देखो शेड्स आ रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, डिलीट नहीं हो पा रहा है मैजिक इरेजर टूल से।
यहाँ पे हो जाएगा हाल, ये देखो क्योंकि सेम कलर है तो कलर में वेरिएशन जहाँ आया वहाँ पे वो धीरे धीरे करता है। लेकिन बड़े बड़े बैकग्राउंड्स होते हैं, हमें रिमूव करना होता है, सेम कलर का होता है तो तुरंत के तुरंत रिमूव कर देते हैं हम। यहाँ पे थोड़ा टीडियस टास्क हो जाता है तो उस टाइम पे हम क्या ले लेते हैं, बैकग्राउंड इरेजर टूल यूज कर लेते हैं ताकि हम अपने बैकग्राउंड का कलर पिक कर लें और फटाफट उसको डिलीट कर दें वहां से। सो दिस इज द इरेजर टूल. Thank you. Please stay safe and don't forget to subscribe the channel and also press the bell icon for the latest updates.